first give you. Let me first quickly give you all the links, so that there is no confusion. I will also put it on the WhatsApp group. सबसे पहले, the first thing that I want to give you is of the Google Drive, which will have all the codes. Okay, all the codes which are there, which we will be using, will be added in the Google Drive. I will show you also how to use the Google Drive. Okay, 1 minute. I'm first sharing the link. We have already added all of you in the Google Drive, so everyone should have access. Okay, everyone should have access already. In case you don't have access for this, let me know. This is the Google Drive link. I'll tell you. So I hope my screen is visible. So एक बार आप लिंक पे चले जाइए. अभी I hope सबका लिंक खुल भी गया होगा. There is no error in the link. I'll tell you how to use this, right? अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी anyway. अभी you don't have to use it, but going further we will be using it. So पहली बात, you can go to each individual broker. For example, if I go to Zerodha, these are all the files, updated files हैं, which we will be using for Zerodha. So broker wise यहाँ पे दिया हुआ है. So Zerodha file 0. Apart from that, we will be using Idea IntelliJ. Idea IntelliJ का software जो installation होगा और Python installation होगा, I will be sending you the details on WhatsApp group कि वो कैसे कर रहा है. Okay, so what you'll have to do is, let me just keep writing also. So what I'll do is, you will have to install Python first, install Python, and then you will have to install Idea IntelliJ. इसकी वीडियो बनी हुई है. Okay, just go through the videos. Just go through the videos as it is. And the third part is, you will have to create your APIs. Create your API. API means आपके broker का. So whatever broker that you have out of these three, शून्य, Fires और Zerodha, इनमें से जो भी आपका broker है, उसकी आपको API बनानी होगी. So I will be sending you details of how to do all this. You can do it at your end and try to do it in next 3-4 days. Okay, next 3-4 days में करने की कोशिश करिए, because from 9th, एक मिनट, let me check the date. 9th को कोई हमारा session तो नहीं है. 1 minute. Okay, we have a session on 9th actually. So from 10th then, either 8th or 10th, either 8th or 10th. Is it necessary to open? No, not necessary to open Zerodha account. You can go for Fires or Finvasia also. Fires or Finvasia also. See here, Fires and Finvasia are same. Fires or Finvasia. Okay. So on from 8th onwards, we will have a session. We will have the hand holding session जहाँ पर आपका ये help कराया जाएगा. You'll be able to. नहीं सर, तो ये वीडियोस कहाँ हैं ये करने के लिए? मैं भेजूंगा आपको. I will. अच्छा, भेजेंगे. मैं आपको WhatsApp पे भेजूंगा लिंक. अच्छा, ठीक है. थैंक यू. है ना? ठीक है. Don't use PyCharm. I mean, मतलब I will be using Idea IntelliJ. If you want to use PyCharm, it's up to you. It's up to you. Okay. I will be showing examples of these three brokers. उसके अलावा आपको जो करना है आप कर सकते हैं. I will be showing examples on these three brokers. Apart from that, it's up to you. So my team will be only helping you with these three brokers, because जो Algo है वो इस तीनों brokers में हैं, as mentioned earlier also. So you can either open the account. If you are worried about the cost, then open one of these. Fires and Finvasia are free. They don't charge any API fees. So I will be sending you these links on the WhatsApp group, and from 9th onwards, 9th of May, we will have the hand-holding session. In the hand-holding session, we will help you with the installation. In case आपका installation में error आया है तो, अगर installation चल गया है, you don't have to come for this session. You don't have to come for this session. So in case you're not able to do these, कोई error आ रहा है आपका, come for the 9th session. तो वो आपको again, we'll send you all the messages in the group one. तो पहली चीज तो ये हो गई. Then what I will be using is I will be using Google Sheets. So जो भी मैं सिखाऊंगा, I'll keep putting it in the Google Sheet. And after the session ends, I will be downloading the Google Sheet and sending on the WhatsApp group. तो आपके पास सारी Google Sheet वहां मिल जाएंगी. I am going to teach us, right? I am going to teach us. And that's it, right? That's it. उसके अलावा
I will be giving you PDF files also. I will be giving you PDF files also for each session. For each session, मैं PDF file को पढ़ूंगा नहीं. I will not read the PDF file. I will send it to you whenever you have time. You can read it. Okay. I will be teaching all the things which are there in the PDF file directly. मैं PDF file को कुछ भी पढ़ूंगा नहीं. I will not be reading PDF files. ठीक है. And generally what we do is in the last half an hour we take for questions. तो आपका जो भी question होगा we'll go for that. So अभी कोड तक का कुछ नहीं है. The next we are doing is angel analysis. Angel analysis. So before we start, very important things to note. This is not a tip service. Okay. This is not a tip service. No tips will ever be provided. This is not a software. यहाँ पर हम कोई software नहीं बेच रहे, ना आपको कोई software मिल रहा. This is a learning course. Okay. As you know, we are in stock market. There are no guarantees of any profits or returns. You will not become a Python expert. I hope आप ये समझ गए होंगे कि you cannot 5 days you cannot become Python experts. मैं भी आपको Python expert नहीं बना पाऊंगा. Sample coding will be shown in 3 brokers as I mentioned, Zerodha, Fires and Finvision. Okay. During the course मैं आपको कुछ backtest result दिखाऊंगा because हम strategy discuss करेंगे तो मैं आपको कुछ result दिखाऊंगा. But the aim is that you create your own strategy. You create your own strategy. तो obviously जब आप अपनी strategy create करेंगे, the results can be different. It can be better. It can be worse. उसके बाद you have to please don't miss classes, है ना. Please आपके पास already calendar आ चुका. You already have the calendars. आप classes मत करिएगा. Very important. In case आप कोई class miss कर देते हैं, in case you miss it, कोई भी XYZ reason से, at least go through the recording. एक बार recording को जरूर देख लें. And whatever questions that you have, you can ask me in the next session. But try not to miss sessions. And obviously, जो हम जब coding में आएंगे, when we go into the coding part, every coding will have the paper trading mode. Okay, so every strategy will have a paper trading mode. So generally better ये रहता है कि you test out your strategy on paper trade mode first before going live. And obviously, TFU and I, we do not take any responsibility of any profit or loss that happen in your account. Will you? Deployment, yes. Obviously, live and paper trading, yes. How to get recorded videos? Yeah, again, जैसे अभी अविरल ने बताया था, कोई भी आपका administrative doubt है, so video recordings, things like that, that is all administrative things. वो आपको अविरल बताएंगे. Okay, so अविरल takes care of all the administrative issues. Basically, I'll tell you how this is structured. TFU is the Future University. The Future University एक company है जिनके under बहुत सारे mentors हैं. Okay, so I am one of the mentors who takes care of options and algo, right? So separate है पहली चीज. We have separate. Basically, I am an external mentor to them. Avril is a part of TFU. Avril is part of the Future University. So कोई भी आपका TFU related question है, let's say आपको invoice चाहिए, for example, if you want an invoice या फिर आपको कोई भी recording चाहिए, वो आपको Avril बता पाएंगे, या calendar, these kind of things, all the administrative doubts Avril can tell you because मेरे पास उसका access नहीं होता है. So for example, आज की जो recording होगी मेरे पास उसका access नहीं होता है, वो मेरे download में नहीं आता, वो उनके पास जाता है. But any questions regarding to the course content, right? Any questions regarding to the course content, कि आपको कोई code नहीं मिल रहा या फिर you're not finding the PDF file या Excel file, वो आप मुझे message करेंगे, right? So anything on course I can answer, but anything administrative Avril can answer. ठीक है, great. So let's start. So हमारे साथ कितने लोग हैं? How many of you are new to options? जिन्होंने कभी options नहीं trade किया, never traded options before. Okay, there are few people already. ठीक है, okay, there are a lot of them actually. ठीक है. So what I will be doing, I will be taking, मैं जब भी example लूंगा मैं एकदम live example लिया करूंगा. तो आज का example लिया करूंगा जनरली में, जो भी whatever has been today's. So let's start. First, let's talk about futures क्या होता है. Let me just make it. अब let me add Reliance and Reliance future. मैं यहाँ पे Reliance add कर रहा हूँ, and I'm adding Reliance future also. ये Reliance का chart है, and this is Reliance future chart. Okay, both on 5-minute time frame. Let me make it
नाउ जस्ट ट्राई टू सी आपको कुछ चीज कॉमन लग रही है क्या? आर यू एबल टू फाइंड समथिंग कॉमन बिटवीन रिलायंस एंड रिलायंस फ्यूचर? आपको लग रहा होगा बहुत सिमिलर चार्ट है, राइट? द चार्ट्स लुक वेरी सिमिलर. The charts look very similar. So let's see what is the difference. Let's see what is the difference. Reliance जो है, this Reliance, this अगर आप इसमें कोई buy करते हो, if you buy Reliance, that means you are becoming part of the company. आप एक equity hold कर रहे हो, you are part of the company now. चाहे वो बहुत ही minimum हो, let's say 0.00001%, but you are part of the company. मतलब अब if the company gives any dividends, profits, bonuses, तो आप भी उसके हिस्सेदार हो गए. दैट इज व्हाट अ रिलायंस स्टॉक मींस. एंड इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. दैट मींस यू कैन बाय द स्टॉक टुडे एंड यू कैन होल्ड इट फॉर 10 इयर्स. करेक्ट. बट जो रिलायंस फ्यूचर होता है, जो रिलायंस फ्यूचर है, जो मैंने रिलायंस FUT ऐड किया है, दिस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप कंपनी के हिस्सा नहीं हो. यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपनी. ओके. सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट डिफरेंस ऑब्वियसली इज, कहां गया? हियर. लेट मी जस्ट मेक इट class 1. So the first thing is that it's a contract. It's not a equity. Second thing, सबको short selling पता है क्या होता है? Everyone knows what short selling is. Everyone knows what short selling is. कि किसी को नहीं पता short selling? Everyone knows, right? ठीक है. All right, good. किसी को नहीं पता तो मैं बता दूंगा. Everyone knows, right? नहीं, short selling नहीं पता. Okay. Even if 1% is there, I'll tell you. Okay. शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? स्टॉक मार्केट में आप पहले सेल कर सकते हो, बाद में बाय कर सकते हो. पहले सेल कर सकते हो, बाद में बाय कर सकते हो. Why do you do that? Why do you do that? Let's take an example. Let's say अगर हम आज का मार्केट देखते हैं, this is today's market. अगर मैं यहाँ पे सेल कर देता, if I sell here Reliance, जो प्राइस था करीब 2445, and when it went down, जब वो नीचे गिर गया, फिर मैं बाय कर लिया, तो मुझे प्रॉफिट आ जाता. करेक्ट. बिकॉज आई एम सेलिंग एक्सपेंसिव एंड बाइंग चीपर. तो अगर मार्केट गिर रहा है, if the market is going down and I sell first and buy later, तब प्रॉफिट आ सकता है. मतलब गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट हो सकता है. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. बट इंडिया में आप स्टॉक्स में अगर शॉर्ट सेलिंग करोगे, यू कैन ओनली डू इंट्राडे. बट लेट्स से मुझे लग रहा है कि कल रिलायंस गिरने वाला है, आई फील दैट टुमारो रिलायंस नीचे गिरेगा, तो मैं ये नहीं कर सकता कि आई कैन नॉट सेल टुडे, आई कैन नॉट सेल एट 2418 एंड बाय टुमारो. मैं ये नहीं कर सकता स्टॉक्स में. बट आई कैन डू इट इन फ्यूचर्स. सो फ्यूचर्स का फायदा क्या होता है कि हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं पोजिशनली. आई कैन सेल रिलायंस फ्यूचर टुडे एंड आई कैन बाय इट लेट्स से आफ्टर 3-4 days. तो एक बहुत बेनिफिट आ जाता है आप फ्यूचर में जब ट्रेड करते हो, यू कैन डू शॉर्ट सेलिंग. दूसरा क्या फायदा होता है कि ऑब्वियसली रिलायंस फ्यूचर में यू हैव मिनिमम लॉट साइज. मिनिमम लॉट साइज. लॉट साइज मतलब लेट्स से मुझे रिलायंस को स्टॉक खरीदना है. So if I do buying, I can do 1 quantity, 2 quantity. मैं minimum 1 quantity ट्रेड कर सकता हूँ. करेक्ट. जिसका मेरे को केवल 482 रुपीज लगेगा मार्जिन. बट इफ आई वांट टू बाय रिलायंस फ्यूचर्स, माय मिनिमम क्वांटिटी इज 250. माय मिनिमम क्वांटिटी इज 250, 500, मतलब 250 के मल्टीपल्स में है. दिस इज कॉल्ड द लॉट साइज. दिस इज कॉल्ड द लॉट साइज एंड देयर इज अ पर्टिकुलर लॉट साइज फॉर एवरी फ्यूचर. सबका 250 नहीं होता, सबका अलग अलग होता है. बट बेसिकली इट इज ओनली फॉर पीपल जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट थिंग, एवरी स्टॉक डज नॉट हैव अ फ्यूचर. अराउंड टॉप 190 to 200 कंपनीज जो इंडिया की हैं, ओनली द टॉप 190 to 200 कंपनीज, उनके फ्यूचर्स होते हैं जिनको हम FNO बोलते हैं. FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. उन्हीं में आपको फ्यूचर्स मिलते हैं, बाकी सब में नहीं मिलते. एंड द लास्ट थिंग इज मार्जिन. अब मार्जिन का मतलब, लेट्स से आई वांट टू बाय रिलायंस जिसका प्राइस चल रहा है लेट्स से 2420, 2400 कर लेते हैं. तो इफ आई वांट टू बाय लेट्स से 250 क्वांटिटी, अगर मेरे को 250 क्वांटिटी बाय करनी है, तो मेरा जो टोटल मार्जिन यूज होगा, आप देखोगे 6 लाख रुपीज. राइट. 6 लाख सही होगा मेरे अकाउंट में इफ आई वांट टू बाय 250 क्वांटिटी. तो माय इन्वेस्टमेंट इज 6 lakh rupees. But if I want to do the same thing with Reliance futures, let's say if I want to buy futures को 1 lot 250 quantity, आप देखोगे my margin is only 1 lakh rupees. My margin is only 1 lakh rupees. Right? Can you see this margin? यहाँ नीचे दिख रहा है. So it's only 1 lakh for the same price, for the same quantity. It's only 1 lakh. आप can you see the difference? It's almost 6 times.
almost 6x. इसको leverage बोलते हैं. How? मतलब this is what future is giving. When you trade futures, you are able to take more quantity at a less price. That is why this is called a leverage product. इसको leverage product इसलिए बोला जाता है. Okay, so you can have one future worth 250 quantity at a low investment of 1 lakh rupees. अब ये इसका profit भी हो सकता है, loss भी हो सकता है. That's the second thing. But this is the property of a future. Okay, तो ये सारी चीजें हो गई futures की. And the last thing is expiry date. मैंने आपको कहा कि it's a contract, right? Every contract has an expiry date. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है Reliance May FUT, मतलब ये May का फ्यूचर है. It will expire in May. But which May? वो आपको ढूंढना पड़ता है last Thursday of the month. तो अगर आप देखोगे May, अगर आप if you open your calendar, the last Thursday is 25th May. 25th May. So this will expire on 25th May 2023. मतलब after this date 26 को ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ट्रेड नहीं कर सकते. दिस इज नॉट एग्जिस्ट. तब हम जून वाले को ट्रेड करेंगे. ओके, तो दीज आर द मेन थिंग्स अबाउट फ्यूचर्स एंड दैट्स अबाउट इट. इसमें ज्यादा ट्रेड नहीं करते लोग बिकॉज खर्चा बहुत आता है. द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स इज प्रीटी हाई. सो वी विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस बिकॉज ऑप्शंस में वी कैन ट्रेड बेस्ड ऑन आवर रिस्क एंड रिवॉर्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शंस. Let me show you what is the option. So मैं निफ्टी की बात करता हूँ. Let me talk about निफ्टी. ठीक है. So I'm going to show you निफ्टी option now. पहले मैं आपको कॉल ऑप्शन दिखाऊंगा. So दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. Okay, so let me show you the call option first. मैं यहाँ पर 18100 लिख रहा हूँ और let me write 18200, 18,000. Okay, ठीक है. What I've done is I've added 3 call options. अभी क्या लिखा है इसमें? 4 चीज लिखी है. निफ्टी 4th में 18,000 CE, right? So let's try to understand क्या लिखा है. निफ्टी 4th में 18,000 CE. There are 4 parts which are written in this. First thing is Nifty. Second thing is 4th में. Third part is 18,000 and the 4th part is CE. Okay. Now Nifty means ये जो option है, this option is for Nifty. मतलब ये Nifty underlying Nifty उसका option है. मतलब किस stock का option है, किस index का option है. Very straightforward. Second thing 4th में कि इसकी expiry क्या है. अब Nifty और Bank Nifty में we have weekly expiry. Which is every Thursday of the month. So you will notice कि 4th May is the current Thursday. And Fin Nifty में it's every Tuesday of the month, which is 2nd May. Okay? This is called the weekly expiry. और इसके अलावा monthly expiry होती है, which is again the 25th May. Okay? तो ये 4th May is basically telling कि इसकी expiry 4th को हो जाएगी. मतलब 5th को we cannot trade this particular instrument. So this is also very straightforward. इसको छोड़ देते हैं. CE क्या होता है? CE means call. CE is call and PE is put. अब call को मैं दिखाता हूं क्या होता है. Let me show you what call is. I will show you call and Nifty. Okay, just try to see कि कुछ आपको कुछ similarity दिख रही है क्या. This and this. It's not very clean. In fact, let me show you this. Previous day का देख लो, थोड़ा आपको easy मिलेगा. देखो, can you see something? Can you see that it's more or less similar? Right? If you let me show you this day. अगर आप इस दिन का देखो data, and if you see this day, see, it's more or less similar, right? When the Nifty is going up, when Nifty is, अच्छा ये Reliance दिख रहा है क्या? That is why. Okay, sorry. Why it's not updating? हाँ, अब दिखेगा आपको. See this. Now notice both Nifty and Nifty option. Can you see something? They are very similar charts.
When the Nifty is going up, call is supposed to go up, ऊपर जा रहा है, and when the Nifty is coming down, call is coming down, right? अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, I'm adding put, जिसमें PE होता है put, okay? So I'm adding put here now, and just try to see put and Nifty. Put and Nifty को अब आप compare करना. So this is put. Okay, so this is put, and look at today's Nifty. Can you see something? Can you see something? Put and Nifty में दिख रहा है? They are opposite. They are opposite, right? तो एक और चीज क्लियर होती आ रही है कि when the Nifty is going up, call is also going up, more or less. And when Nifty is going down, put is going up, opposite. तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया. But let's talk about ये 18,000 क्या है? What is this 18,000, right? This is called the strike price. इसका नाम होता है strike price. And जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने अलग अलग strike prices को यहाँ ऐड कर दिया. So I've added different strike prices, 18,000, 18,200, 18,400, ऐसी बहुत सारी strike price होती हैं, right? So I've added different strike prices. But let us see what is the meaning. What is the meaning and how do they change? What is the meaning and how do they change? Okay. So let's see some examples. In fact, let me make it 18,100 only. Okay. So I've added 18,000, 18,100 and 18,200. Let's see कि इनमें difference क्या है. Okay. Spot. अगर मैं आज देखूं, if we talk about today, let's say कि मैंने first candle की closing price पे, after the first candle closed इस point पे नीचे, let's say मुझे लगा कि market ऊपर जाएगा, okay, मुझे लगा market ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ पे buying करी. So entry is at 18074 पे मैंने entry करी, and then it goes up also, और closing price यहाँ आया, which is around 18082. राइट 18082 पे मेरे क्लोजिंग हो गया निफ्टी का. मैं सारे के सारे प्राइसेस ऊपर से देख रहा हूं, लुकिंग एट द प्राइसेस हियर ऊपर. सो एंट्री एट 18074 एंड क्लोजिंग एट 18082. तो ये तो हो गया निफ्टी का. दैट मींस अगर मैंने बाइंग करी होती तो मुझे 8 पॉइंट्स का प्रॉफिट आता, आज सिंगल डे. बट नाउ लेट्स सी कि अगर हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते तो क्या डिफरेंस होगा. तो आई विल चेक 18,000, 18,100 एंड 18,200. सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं. तो I'm adding 18,000 कॉल. फर्स्ट कैंडल सेम थिंग, फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग पे अगर मैंने एंट्री करी होती 108.4, राइट, 108.4 पे एंट्री आती, एंड एग्जिट मेरा आता एट द क्लोजिंग विच इज 106.65. दैट मीन्स अब आपको देखना शुरू होगा that I am actually making a loss here. जबकि निफ्टी में प्रॉफिट आया है, राइट. Let's see 18,100. Again, let's see क्या होता. एंट्री एट 46.35 से लेकर 42. Again, I'm making a loss. And let's take the last one. Entry at, sorry, not this one, 15.05, 10.75. ठीक है, तो आपको ये दिख गया होगा. Now first thing, can you see something? अभी हमने बोला था कि if the Nifty is going up, then call में प्रॉफिट आना चाहिए था, बट वो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट आया ही नहीं. कैन यू सी दिस? तो पहली चीज तो ये है कि कॉल में हमेशा प्रॉफिट नहीं आएगा. अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कॉल में प्रॉफिट आए. विल टॉक अबाउट इट, क्यों हो रहा है, विल टॉक अबाउट दैट. बट अगर आपको मैं ये दिखाता हूं, सो व्हाट ऑल कैन यू सी नाउ, व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट कैन यू सी. फर्स्ट थिंग आप देख सकते हो कि ये 18,000 की जो कॉल है, इसका प्राइस 108 रुपीज है. इट्स प्राइस एट 108 रुपीज, whereas 18,200 इज प्राइस एट ओनली 15 रुपीज. ये केवल 15 रुपए का है, ये 108 रुपीज का है. मतलब अगर आपको ऑप्शन बाय करना है, यहाँ पर आपको 108 का बाइंग करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी बाइंग एट 15 रुपीज ओनली. तो अभी देखकर
क्या लग रहा है, विच वन डू यू थिंक इज बेटर टू बाय? क्या लग रहा है अभी तक? विच वन डू यू थिंक इज बेटर टू बाय? 18,000 वाला कि 18,200? ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं. फ्यू पीपल आर सेइंग 18,200, फ्यू पीपल आर सेइंग 18,000 आल्सो. आगे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट पीएनएल इन परसेंटेज टर्म्स. लेट्स टॉक अबाउट पीएनएल इन परसेंटेज टर्म्स कि मेरा आज का लॉस कितना परसेंट हुआ. इफ यू नोटिस नाउ कि 18,000 में मेरा केवल 1% का लॉस हुआ. 18,000 में मेरा ओनली 1% लॉस. 18,200 28% लॉस. 28% लॉस. तो अब कुछ ना कुछ दिखने लग गया होगा आपको कि यार दिस इज डेफिनेटली रिस्की, राइट? राइट. बट लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ये जो नंबर्स इनका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस मीन? स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि ऑन 4th में, अगर मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूं. व्हाई 4th में? बिकॉज दिस इज 4th में एक्सपायरी. मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू राइट अदरवाइज. ऑन 4th में if the value of spot, if the value of nifty is above this number, if it is above this number, तो इसमें रेवेन्यू होगा, मतलब इसका कोई वैल्यू होगी. अदरवाइज इट विल बी 0. So let's assume that 4th May को the value of Nifty is 18,500 or let's say 18,400 for example. ठीक है? अगर वो 18,400 है, so what will be my exit price? Exit उस दिन इसका प्राइस क्या होगा? So very easy to calculate. 18,400 minus 18,000, right? अगर निफ्टी की वैल्यू 18,400 है, then what will be the value of this 18,000 call? It will be 18,400 minus 18,000, which is 400 points. Similarly, what will be the value of this? 300 points. And what will be the value of this? 200 points. Clear हो गया यहाँ तक? Assuming that 4th, देखो पहली चीज, why are you buying a call? You are buying a call because you feel that Nifty can go up. So we are buying because we felt that Nifty went up and Nifty went up also. 18,074 से 18,400 चला गया. So this will be the exit price, but this is not the profit. Profit कैसे निकलेगा? P&L will be the selling price minus the buying price. So this is the profit, right? But again, let's look at the profit percentage. Let's look at the profit percentage. कि मेरे investment पे कितना परसेंट आया? Now you will start looking at something which is mind-boggling. आपकी 18,000 कॉल पे आपको 269% का प्रॉफिट आ सकता है, right? 547% and 12,000% profit. Again, all this is theoretical, assuming that Nifty goes up to 18,400, right? यहां तक क्लियर हो गया? So again, what we are able to see is जो 18,200 कॉल है, इसमें रिस्क भी ज्यादा है. You can see here, इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है. It's more risky and it's more rewarding. It's more risky and it's more rewarding. But let's also try to find out what is my break-even price. What is my break-even price? Break-even क्या होता है? Break-even होता है कि अगर निफ्टी की वैल्यू, what should be the value of Nifty? What should be the value of Nifty so that I don't lose money जो मैंने कॉल को बाय किया है? So कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमने देखा कि 18,000 है ये, let's say the value of Nifty, let's say the value of Nifty is 18,108.4 on 4th May. तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी इस कॉल ऑप्शन की? 18,108.4 minus 18,000, राइट? अभी हमने वही कैलकुलेशन यहाँ पे करी थी. That means the value will be of this call option 108.4, same as this value. तो मेरे को ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा. This is called the break even price. कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 18,000 plus 108.4. So let me put it in formula now. So this becomes a break even price for Nifty. तो ये हमारे सारे break even निकल गए. Why am I showing you break even? How much Nifty has to move so that it gives me profit? अभी Nifty 18,074 पे है. And I'm saying if it goes to 18,108.4, मेरा कोई लॉस नहीं हो सकता. मेरा लॉस नहीं हो सकता, right? How much it has to move?
only 34 points. Only 34 points. If Nifty moves up by only 34 points till 4th May, 3:30 p.m., I cannot get loss in this option. But 18,100 call अगर मैं buy करता हूँ तो it has to move by 72 points. And 18,200 call buy कर रहा हूँ तो it has to move by 141 points. Again आपको क्या दिख रहा है? जो सस्ती ऑप्शन है, the cheap option is more risky. Right? Because Nifty has to move more to give us profit. Clear हो गया यहाँ तक? Clear हो गया यहाँ तक? Right? So just to clarify, या फिर just to, अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ, what is in the money, at the money, OT में आप लोग you will keep hearing these terms. जो भी strike price which is closest to the spot price, the strike price closest to the spot price, जैसे इस example में 18,100 है, this is called ATM, at the money option. Okay, any option which is cheaper than this at the money option is called OTM, out of the money, and any option which is expensive is called an ITM, in the money. So this is the, again, just naming it, but you will keep hearing them. Okay, so just to summarize that, should we buy cheap options or not? If you go for cheap options, जैसे 18,200, you have more risk and more reward. Stock market में एक चीज समझ लो, if you want more reward, you have to take more risk. Very simple. Okay, so it has more risk and more reward, and the probability is low. Probability of profit is low. Got it? ठीक है. अच्छा, यहां पर अगेन जो हमारा कोर्स है, this course is for traders. Not for technical analyst. Technical analyst और trader में difference बताया था. Technical analyst will come at 3:30 p.m. and it will give you 100 reasons. अच्छा, आज market sideways था because of this reason, right? Because of this reason यहाँ पे ये हुआ, because यहाँ पे ये हुआ. At 3:30 he will tell you 100 reasons कि market आज ये ऐसा क्यों हुआ. As a trader, we have to take decisions during market hours. तो अगर मुझे यहाँ पर I should have clear reasoning why market can reverse and I should be able to take a trade. Right? That also means that there are a lot of things which happens in the stock market which I don't really care कि क्यों हो रहा है. Why? Stock market में वो why का मुझे फर्क नहीं पड़ता. Because again, I am not a stock technical analyst. मुझे कहीं न्यूज में आकर नहीं बोलना कि मुझे क्यों हो रहा है. Okay? I hope you understand the difference. So मैं यहाँ पर भी I will be only taking those questions जो specific होंगे how to make money. अगर आप मुझसे theoretical questions पूछोगे, I don't think there's a need to answer those questions because we are not here to become technical analysts. Very simple. अब for example अगर आप मुझसे question पूछो कि आज market gap down क्यों हुआ, does it really help us? Simple सा question है. आज gap down क्यों हुआ? Does it really help us? Won't help us, no? But क्या कल gap down होगा? That is more important. I hope you get the difference. क्योंकि काफी बार लोग कहते हैं सर आज गैप डाउन होगी, क्यों हुआ? I say I don't care. क्योंकि मैं तो ट्रेड में था ही नहीं ना. अगर मैं तो यहाँ पे पुट खरीदी होती तब तो मुझे फायदा होता. But if I'm not in the trade, then I don't care कि क्यों हो रहा है. Okay, so we should be more worried कि क्या होने वाला है. What is going to happen? What has happened wouldn't help us. Correct? ठीक है. Guessing नहीं करेंगे सर. There is no guessing. हम यहाँ guess करने नहीं बैठे. No guessing happening. ठीक है. यहाँ तक I hope no questions so far. I hope any questions so far. चलिए मैं question end में ले लूँगा. I'll just take all the questions in the end only. ठीक है. So अब my next question is आप में से कितने लोग बायर हैं and कितने लोग सेलर हैं? How many of you are buyers and how many of you are sellers?
How many of you are buyers and how many of you are sellers? Okay, I can see. ठीक है, और good ratio. ठीक है, let me first ask the buyers. Let me first ask the buyers. जो मैं buyer है ना, केवल वो ही आंसर करिएगा. Only the buyers, only you answer. Okay. आप लोग जो भी buyer है, whoever is a buyer, only those answer. Okay. जो भी buying करते हैं, what are the reasons? What are the reasons? नहीं, hedging वाले नहीं, buyer. Actual buying जो करते हैं, hedging वाले buyer नहीं कह रहा. Only buyers. What is the reason that you do buying? Low margin. Okay. और आप ही के आंसर लिखूंगा मैं यहाँ पे. Low margin. केवल जो बायर्स हैं, ओनली द बायर्स. हाँ, लो कैपिटल लो मार्जिन सेम हो गया. बिग प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड, हाई प्रॉफिट चांसेस, हाई प्रॉफिट चांसेस. ओके, हाई प्रोबेबिलिटी. लो इन्वेस्टमेंट हो गया, लो मार्जिन सेम ही चीज हो गई. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? लो वही हो गया सर, लो कैपिटल ऊपर डाल दिया मैंने. एनीथिंग एल्स? हाई ROI, big profit, high ROI, movement. Okay. Anything else? I think I've taken most of the answers. Afraid of loss. Afraid of loss मतलब limited loss, right? Limited loss. Same ही हो गया. High risk to reward. Okay. High risk to reward. News based trading. Okay. ठीक है. Thank you. Thank you. Thank you guys. Sellers. Now the sellers. Sellers वाले जो भी seller हैं वो प्लीज बताएं why did you do selling? जो भी sellers थे. थीटा. Okay. Fast money. High probability. और वहां probability डाल दी मैंने. और anything else? Anything else? Better risk to reward. Anything else? Low risk. Okay. Anything else? More accuracy. Time theta आ गया. No cash required. So no cash required या फिर better capital utilization आप कह रहे हो एक तरह से. ओके. हाँ, वही प्लेज मनी मैंने यहाँ डाल दिया, नो कैश में डाल दिया. एनीथिंग एल्स? दिनेश जी, व्हाट इज नॉट क्लियर? दिनेश जी, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, राइट? प्रोबेबिलिटी डाल दी मैंने, हाई प्रोबेबिलिटी. और बताओ. ठीक है, लो रिस्क भी डाल दिया. ओके, ठीक है. आई हैव एडेड ऑल दीज. ठीक है. We'll take the questions. Just hold on. Don't worry. We'll take the questions. अब यहां पर unlimited loss, consistent income. ठीक है, रुक जाओ. Just hold on. हो गए सारे आंसर्स आ गए. अब आपको कुछ चीज थोड़ी अजीब लग रही होगी. ठीक है ना, थोड़ी अजीब लग रही होगी. ठीक है, कुछ लोग क्वेश्चन है ऑप्शन बायर मतलब ऑप्शन सेलर में डिफरेंस क्या है. लेट मी टेल यू. देखो, व्हेन ऑप्शन बायर मतलब व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, देखो जनरली क्या होता है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम स्टॉक ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग, आप क्या करते हो कि यू कैन, इफ यू फील द मार्केट इज गोइंग टू गो अप, आप बाय कर लोगे. अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट फ्यूचर, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सीधे बाय कर लोगे, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो आप सेल कर दोगे, राइट? बट जब हम ऑप्शन में आ जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, करेक्ट? जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, इफ आई फील, उसके बाद मैं आपको यहां समझाता हूं. लेट मी राइट इट हियर. इफ आई फील दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो अप, मार्केट कैन गो अप, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? एक तो ऑब्वियसली मैं फ्यूचर को ही बाय कर लूंगा, बट फ्यूचर के अलावा मैंने कहा कि मार्केट एंड कॉल, राइट? जो कॉल ऑप्शन है और मार्केट है वो सेम डायरेक्शन में चलता है. अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आई कैन बाय अ कॉल, राइट? या फिर आई कैन सेल अ पुट. व्हाट इट, जो भी पूछे थे डिफरेंस क्या है. तो जो बाइंग करता है इनको बायर बोले आता है. दीज आर कॉल्ड द बायर्स, मतलब जो मार्केट का डायरेक्शन बाइंग करके कर रहे हैं, और ये सेलर्स कहे जाते हैं. दीज आर कॉल्ड द सेलर्स. सिमिलरली
if you feel that the market can go down, तो एक तो आप फ्यूचर को ही सेल कर दोगे या फिर आप पुट को बाय कर लोगे, राइट? तो भी हमने देखा था ऑपोजिट जाता है, या फिर मैं कॉल को सेल कर दूंगा। सो बेसिकली हाउ वी प्लान टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, मान लो ये तो आपने ढूंढ लिया कैसे, विल डिस्कस, ऑब्वियसली विल डिस्कस द स्ट्रेटजी, हाउ वी कैन फिगर आउट द डायरेक्शन, बट लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन पार्ट, राइट? दिस इज द डायरेक्शन पार्ट कि आपको डायरेक्शन मिल गया। once you have got the direction, how do you actually execute the trade? Do you actually execute the trade? वो आप एज अ बायर एग्जीक्यूशन कर सकते हो और एज अ सेलर एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ओके, तो डिफरेंस क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। I'll take today's example only. I'll take today's example. Let's say, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि आज हमें लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट? हमने बोला कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, एंड लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी। एट द मनी मैंने आपको बोला विच इज द क्लोजेस्ट टू द क्लोजिंग प्राइस। तो हमने एग्जांपल देते हैं, आज का हम दोनों एग्जांपल लेंगे। सो लेट्स टेक टू एग्जांपल्स फॉर टुडे। तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, जैसे मैंने ऊपर लिखा, निफ्टी वेंट अप फ्रॉम 18,074 टू 1882, तो 8 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया। लेट्स से मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट हाउ विल वी एग्जीक्यूट? वी कुड हैव बॉट अ कॉल, मतलब हम 18,100 की कॉल को बाय कर सकते थे, राइट? और हमने देखा कि अगर हम बाय करते, इट वुड हैव गिवन मी अ लॉस ऑफ 4 पॉइंट्स। ये हमने ऊपर देख लिया। एंड मैं क्या कर सकता था? मैं 18,100 की पुट को सेल कर सकता था, राइट? एज अ सेलर। सो ये बायर हो गया, ये सेलर हो गया। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता। लेट्स सी। So I'm going to add 18,100 put now. Okay, let's see. Again same thing, हम फर्स्ट कैंडल पे सेल करते, so 62.3 पे सेल करते इस बार हम, सेल 62.3 पे, एंड एग्जिट होता मेरा एंड पेज विच इज 51.95। 51.95 सेल मैंने 62 पे किया, बाय 51.95 पे किया। Can you see now? Can you see the difference? Can you see the difference? Can everyone see the difference? कि हमने एग्जीक्यूशन, जस्ट बाय चेंजिंग द एग्जीक्यूशन, दोनों में बायस सेम था, द बायस वाज स्टिल अप, तभी हम कॉल बाय करते हैं, पुट सेल कर रहे थे। बट व्हेन वी बॉट द कॉल, वी एंडेड अप हैविंग अ लॉस ऑफ 4 rupees, and when we sold the put, we ended up having a profit of 10 rupees. Okay, so this is called whether you are trading as a buyer or you are trading as a seller. क्लियर हो गया? जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, इज इट क्लियर नाउ कि व्हाट डज अ बायर मीन एंड व्हाट डज अ सेलर मीन? इससे आपको एक चीज और पता चल गई होगी, कि बाइंग अ कॉल इज नॉट द सेम एज सेलिंग अ पुट। बाइंग अ कॉल इज नॉट द सेम एज सेलिंग द पुट। आप यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। हाँ, कैपिटल वगैरह पढ़ेंगे, वो हम डिफरेंस पढ़ेंगे। We'll talk about the differences. यहां तक सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? यहां तक कोई क्वेश्चन तो बताइए कि बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है। हाँ, राहुल जी बताइए, व्हाट इज अ क्वेश्चन? एक्सप्लेन क्या करूं वो बताओ मुझे। व्हाट शुड आई एक्सप्लेन? वो बताइए। आई एक्सप्लेन इट अगेन। दिस इज द एंट्री, दिस इज द एग्जिट, दिस इज द P&L। ठीक है, क्लियर हो गया? सो यहां पे आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू हो गए होंगे। ओके, द डिफरेंसेस शुड बी क्लियर नाउ। हमने यहाँ पे बात कर ली कि डिफरेंस क्या है। अब लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। मैं आपको उल्टा एग्जांपल दिखाता हूँ जहां पे बाइंग में फायदा आया होगा। ओके, अभी तुमने बाइंग में लॉस दिखाया है, लेट मी शो यू वन एग्जांपल जिसमें बाइंग में फायदा आया होगा। लेट्स टेक, वेयर इज आवर कॉल, पहले निफ्टी को देखते हैं। लेट्स सी दिस डे 28 अप्रैल। ओके, 28 अप्रैल में सेम थिंग वी आर डूइंग अगेन। सेम, अभी मैं केवल सारे एग्जांपल्स में ले रहा हूं फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की सेलिंग, मतलब क्लोजिंग प्राइस, एंड एंड ऑफ द डे एग्जिट प्राइस। सिंपल सा रख रहा हूं मैं। फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल के बाद मैं ट्रेड ले रहा हूं, एंट्री ले रहा हूं, एंड मार्केट एंड होने में मैं एग्जिट ले रहा हूं। दैट इज द एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं। ठीक, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं 28 अप्रैल का। फॉर द 28 अप्रैल, अगर मैं उस दिन ट्रेड करता निफ्टी में, प्योर निफ्टी,
अगेन फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस विच इज 17928 and the closing price which is 18048. कितना प्रॉफिट आया मेरे को? 120 पॉइंट्स. अगेन आई कैन डू टू थिंग्स, आई कैन बी अ बायर और आई कैन बी अ सेलर. तो अगर मैं बाय करता तो मैं उस दिन 17900 की कॉल को बाय करता एट द मनी, या फिर मैं 17900 की पुट को सेल करता. लेट्स सी द रिजल्ट्स. 17900 कॉल. Okay, we already have it. क्लोजिंग हुई थी इसकी 122.75 and it went till 183.7, giving me a profit of 60 points, and let's do 17900 put. सेल करूंगा इस बार में. सेम एग्जांपल, गिरा होगा, डेफिनेटली गिरा होगा. ये रहा वो प्राइस. सो एंट्री एट 55.65 and exiting at the closing price which is 20.1. अब आपको यहां उल्टा दिख रहा होगा. कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? कैन यू सी द डिफरेंस? होपफुली यू कैन सी द डिफरेंस कि अब बाइंग में प्रॉफिट आ गया. राइट? क्लियर? सो ऑब्वियसली देयर आर टू ways you make money in options. डायरेक्शन तो पता है ही, but apart from that, how to execute can give very big results between profit and loss. For example, आज हम लोग अगर डायरेक्शन पकड़ भी लें, but we give, why there is a difference? Because we are talking about different options, right? हम लोग why का भी आंसर देंगे, that will happen tomorrow because of different Greeks. वो हम अगली बार बताएंगे. But I am right now showing you कि difference हो रहा है कि नहीं. I hope आपको सबको difference दिख रहा है. Yeah, there is major difference. थोड़ा मोटा difference नहीं है. If this was, let's say, 60 points and this was 55, and if this was -4 and -3, then it's okay. यार ठीक है, छोटा सा difference है. But this is big difference, right? This is big difference. यहां तक क्लियर हो गया सबको? अभी यार एंट्री एग्जिट हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं. टोल्ड यू, डायरेक्शन हम लोग अभी नहीं सीख रहे. आई एम अज्यूमिंग दैट आप एंट्री ले रहे हो. ठीक है ना? हम डायरेक्शन नहीं सीख रहे. बोथ में प्रॉफिट कैसे हो सकता है? क्यों? अरे बोथ में क्यों नहीं होगा? आप ये देखो ना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप, तो आप क्या कर सकते हो? आप कॉल को बाय कर सकते हो और पुट को सेल कर सकते हो. दोनों चीज कर सकते हो ना. तो दोनों में प्रॉफिट आ गया. अगर मैं यहां पर पुट को बाय करता तब डेफिनेटली लॉस आता. बट ये तो सेम ही डायरेक्शन हुआ ना. रिमेंबर मैंने शुरुआत में क्या दिखाया था? आई शोड यू कॉल एंड आई शोड यू निफ्टी. व्हेन निफ्टी गोज अप, कॉल जनरली टेंड्स टू गो अप, एंड व्हेन निफ्टी गोज डाउन, it put generally comes on. Navneet, yes, it's regarding Python coding, but we'll do it after 15 days, right? From the 16th. For the first 5 days, it's all about options. 16th के बाद कोडिंग शुरू करेंगे. Not 16th, I think 15th. I don't remember the date. वो आप कैलेंडर में देख लेना. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. सो आई होप डायरेक्शन क्लियर होते आ रहा है आपको, एग्जीक्यूशन क्लियर होते आ रहा है. इज बाइंग कॉल इक्वल टू सेलिंग पुट? नो. बाइंग कॉल इज, आप देखो ना, यू कैन सी हियर, बाइंग कॉल इज नॉट इक्वल टू सेलिंग पुट. यू कैन सी द रिजल्ट्स. राइट? अगर वो सेम होता तो प्रॉफिट सेम आता या लॉस सेम आता. दे आर नॉट सेम. ठीक है. सो अब मैं यहां पे आ रहा हूं. अब मैं आपको बायर्स एंड सेलर्स का जो डिफरेंस होते हैं मैं वो दिखा रहा हूं. सो हमने यहाँ पे रिजल्ट तो देखे कि ठीक है, डिफरेंस है. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर मोर डिफरेंसेस. मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं. तो जो यहाँ पे लोगों ने डिफरेंस डाला है, राइट, व्हाट मेजर डिफरेंसेस जो लोगों ने बोले, लेट मी शो यू दैट आल्सो. लेट्स से आप कोई चीज बाय कर रहे हो. लेट्स से यू आर बाइंग दिस कॉल ऑप्शन एट 106 रुपीज. ओके, ये कितना ऊपर जा सकता है थ्योरेटिकली? इफ यू बाय दिस ऑप्शन, ये कितना ऊपर जा सकता है? टू अनलिमिटेड, राइट? 5000, 10,000 कुछ भी जा सकता है, राइट? करेक्ट. अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं,
और अगर मैं 18,000 की पुट को सेल कर रहा हूं, 18,000 की पुट को मैं सेल कर रहा हूं, राइट। अगेन मैंने कहा कि अगर मेरे को मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगा तो आइदर आई विल बाय कॉल और आई विल सेल पुट। अगर मैं इसको सेल करता हूं 17 रुपए की, इफ आई सेल इट फॉर 17 रुपीज, कितना नीचे गिर सकता है ये? 17 से कितना नीचे गिर सकता है? जीरो तक जाएगा, जीरो तक ही जाएगा ना, माइनस में नहीं जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। जैसे आपको दिख रहा है, जो आप पूछ रहे थे कि कॉल और मतलब बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है। जब हम बाय करते हैं वो कितना भी ऊपर जा सकता है और सेलिंग में मैक्सिमम इतना ही जाएगा, पहला डिफरेंस। दूसरी चीज, अगर मैंने बाय किया इसको, इफ आई बॉट इट फॉर 100 रुपीज, मुझे कितना लॉस होगा मैक्सिमम? ये 100 रुपीज कितना हो जाएगा मिनिमम? जीरो हो जाएगा। तो मुझे 100 रुपीज का ही लॉस होगा ना, मुझे 100 रुपीज का ही लॉस होगा। ऑप्शंस माइनस नहीं होंगे सर, ऑप्शंस माइनस नहीं होगा, ठीक है, 100 रुपीज का होगा। बट 18,000 की पुट, 18,000 की पुट अगर मैं 17 की सेल कर रहा हूं तो ये कितना ऊपर जा सकता है? ये तो कितना भी ऊपर जा सकता है, तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। क्लियर हो गया डिफरेंस? जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या आ रहा है। और फाइनल जो डिफरेंस आता है वो आता है मार्जिन का। अगर मैं 18,000 की कॉल को बाय करूंगा, आप यहां देख रहे हैं जो टोटल मार्जिन, मार्जिन मतलब एक्सचेंज मुझसे कितने पैसे लेगा, विच इज 5,332 रुपीज, 5,332 रुपीज। ओके, अगर मैं बाइंग कर रहा हूं। और यहीं पर अगर मैं 18,000 को सेल कर रहा हूं, लुक एट द मार्जिन, 95,803 रुपीज, 95,803 रुपीज, राइट। तो ये एक और डिफरेंस है। सो लेट मी राइट डाउन ऑल्सो। कि हमने बात करी कि अगर मैं बाइंग करता हूं, इफ आई डू बाइंग, हाँ अभी हम बात करेंगे, या मैं विल वेट। अगर हम बाय करेंगे कॉल, तो हमने देखा कि थ्योरेटिकली अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया हमारे को, क्योंकि इट कैन गो अप, एंड लिमिटेड लॉस हो गया। एंड अगर हम सेल कर रहे हैं पुट, सो थ्योरेटिकली अनलिमिटेड लॉस हो गया मेरे को और लिमिटेड प्रॉफिट हो गया। एंड द मार्जिन इज ओनली 5,000 रुपीज हियर, एंड द मार्जिन इज 95,000 रुपीज हियर। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? सो बिफोर वी फिनिश, अब मैं आपके क्वेश्चन दूंगा यहां पर। अब आप जो भी आप क्वेश्चन पूछे थे, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ जस्ट सी, क्या आपको कुछ, आर यू गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर? मुझे बायर जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने, बायर्स ने अपने रीजन बताए और सेलर्स ने अपने रीजन बताए, बट मुझे तो दोनों रीजन सेम दिख रहे हैं। लेट मी ट्राई टू शो यू। लिमिटेड लॉस किसी ने बोला था, अगेन ये सारे आप लोगों ने बोले, एंड लो रिस्क, तो दोनों के सेम आंसर आ गए। हाई रिवॉर्ड, मोर एक्यूरेसी। हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी। हाई रिस्क टू रिवॉर्ड। कैन यू सी दिस? आप लोगों ने आंसर दिया, मैंने चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं करी। दिस इज ऑल यू गाइस वर सेइंग, मैं तो केवल लिख रहा था। हाई आरओआई, कंसिस्टेंट इनकम, लो मार्जिन ऑन कैपिटल, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। तो पहली चीज तो दिख रही है कि थोड़ा मजा आया देख के, आई होप देख के मजा आया होगा कि ऑलमोस्ट ऑल द रीजन जो बायर ने सोचे थे अपने लिए, वो सेलर्स के पास भी थे, एंड ऑल द रीजन जो सेलर ने सोचे थे वो बायर्स के पास भी हैं, राइट। ऑलमोस्ट ऑल, एक दो छोड़ दिए मैंने, जो छोड़े हैं वही मेजर डिफरेंस है, जो मैंने छोड़े हैं वही मेजर डिफरेंस है, बट ऑल द अदर पॉइंट्स आर सेम। दिस इज आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि ये सेम क्यों है, और फिर आप जो हम बात करेंगे कि हमें कौन सा करना चाहिए, राइट। सो अगेन द एम इज वी अंडरस्टैंड when we should do buying, when we should do selling, how to find direction, यही सब तो सीखना है। तो आज की फर्स्ट सेशन है, इसलिए आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, जो फर्स्ट टाइम ऑप्शन देख रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ ऑप्शन आज, देखो, ठीक है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कि डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर्स। तो अगेन
आज मैं असली आपके सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट, मतलब आपका फन मिस नहीं करना चाह रहा. यू विल रियली एंजॉय व्हेन यू ट्रेड विद ऑप्शंस. बट ओवरऑल let's take some questions. Generally मैं क्या करता हूँ, you can just keep एक मिनट, I am just lowering all the hands first. Now you can keep asking your questions एक एक करके. Please raise hands. मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करता रहूँगा. जो आपके क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन रेज हैंड्स. आई विल कीप अनम्यूटिंग यू वन बाय वन. ओवरऑल सेशन सही रहा. जो भी लोग नए हैं, डिड यू अंडरस्टैंड द सेशन? डिफरेंसेस दिखने शुरू हुए, राइट? थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है. इज द इंटरेस्ट कमिंग इन ऑप्शंस? ठीक है, ओके. मिस्टर सिंह प्लीज. मिस्टर सिंह प्लीज. मिस्टर सिंह आपका क्वेश्चन प्लीज. सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो परवीन जी, अभी तो मैंने आपको देख लिया. अगली बार ना एक जूम में ऑप्शन है रेज हैंड करने का, है ना, वो कर लिया करिए, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे चैट पे नहीं दिखेगा तो मैं आपको दिख नहीं पाएगा मेरे को. हेलो जी बताइए. सर, आवाज आ रही है? जी बताइए. सर, आपका सेशन बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने. सर, ये जो आप एल्गो बोल रहे थे, कि ये एल्गोस आप हमें रेडीमेड्स भी दोगे अगर हमने कल को डिप्लॉयमेंट करना हो, या हमें कितना टाइम लग जाएगा, मतलब कि हम ट्रेड भी कर पाए उसमें? सर देखो, आपको मैं 5 एल्गो तो रेडीमेड दूंगा ही दूंगा, बट अगेन एम आपको ये होना चाहिए कि आप यहाँ से एल्गो बनाना सीख के जाओ. हाँ हाँ आपको हाँ, मैं तो एल्गो बिल्कुल. दूंगा, वो तो आपको चलो मिल ओके. रहे हैं, बट आप इस ऐसा मत सोचो कि केवल आप एल्गो यहाँ पर लेने आए. कम नहीं फ्रॉम नहीं. दिस. हाँ, थिंकिंग ये रखनी चाहिए कि मैं अपने एल्गो कैसे बनाऊं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही सीखना सर. हाँ जी, पर मैं दूंगा. यस, मैं दूंगा. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू जी. परवीन जी आपका हैंड रेस था. आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है मिस्टर परवीन? हेलो. जी जी बताइए. या गुड इवनिंग सर. बताइए सर. गुड इवनिंग. सर एक्चुअली डाउट मेरा भी यही था सेम, कि जैसे मैंने आपको दोनों सेशंस लिए, एक तो ये भी क्लासेस लिए और एक आपने एक्सेल सीट के थ्रू एल्गोज का वो बता, तो कंफ्यूजन मेरे को यही था कि मैंने कोर्स सही एनरोल किया, क्योंकि मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि मैं एल्गो लर्निंग सीखना चाहता हूँ, ना कि किसी की हैंड होल्डिंग पकड़ के आगे कंटिन्यू बस करना सर, चाहता फिर हूँ. एकदम वही चाहिए सर. यहाँ पर मैंने वही बताया, मैं चाहता भी वही हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और अपने आप करके जाएं. हम्म. जी. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि वो वाली एक्सेल सीट ठीक थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कोर्स उसी के लिए परफेक्ट है, तो फिर Let me take other people. Mr. Rathod ji, please. Mr. Rathod ji. Yeah. Mr. Hello, Ji. hello, sir. Yeah, good evening. जी. So, sir, basically, I have 3 questions. The first, I just want to start with, because since I am also using Zerodha, so just wanted to know, like, जो average price होता है, does it include brokerage charges or not? No, मतलब मैं no, काफी no, no. struggle कर किसी भी ब्रोकर पे ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं करते हैं वो. तो एवरेज प्राइस इज योर प्राइस जो आप ट्रेड ले रहे हो, उसके ऊपर ब्रोकरेज वगैरह सारे चार्ज अलग लगेंगे. तो आपका जब क्रेडिट नोट आएगा, क्रेडिट नोट, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसमें जो भी आज का आपका प्रॉफिट हुआ होगा उसमें माइनस कर देंगे वो ऑल दो चार्जेस. Okay, so got it, sir. Sir, the second question was, you mentioned that there are few brokers who charges for API. So does Zerodha charges for API? Yes, And yes. and how much they charge? Zerodha का है 2000 रुपीज पर मंथ. फायर्स इज 0. शून्य फिनवेजिया इज ऑल्सो 0. ये तो हो गए एपीआई चार्जेस. ओके, Okay. एक मिनट रुकिए, एक मिनट. ये तो हो गया एपीआई का चार्ज. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली ब्रोकरेज है. तो इसका जो आई थिंक 20 रुपीज पर ऑर्डर है, इनका भी सेम है. दिस इज 0 हियर ऑल्सो. So, sir, is there any like risk going with Shunya? देखो, शून्य का अभी रिसेंटली 1 महीना हो गया होगा ऑलमोस्ट. अभी उनका एक बड़ा इशू आया था, वेयर देयर सॉफ्टवेयर स्टॉप वर्किंग. मतलब उनका सब कुछ बंद हो गया था. लास्ट मंथ हुआ था. आई डोंट रिमेम्बर द डेट. तो ऑब्वियसली दैट इशू केम फॉर देम, एंड उसमें ऑब्वियसली
एटलीस्ट आई मतलब मेरा तो उन्होंने जो भी उनकी तरफ से एरर आया था दे हैव रिफंडेड मी, बट मुझे किसी ने बोला था कि उनका भी लॉस हुआ था बट दे हैव नॉट रिफंडेड दैट पर्सन, ठीक है ना। सो मुझे पता नहीं, मेरा तो उन्होंने रिफंड कर दिया जो उनकी वजह से इशू आया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नेवर सीन एनी इशू विद शून्य, मतलब एक बार उनका इशू आया है, यस। Okay. Okay, sir. And sir, also, like I don't find much difference between this option and future. Can you just tell me basic difference, like because दोनों में ही हम बहुत expiry का डिफरेंस सर, दोनों में contract है. फ्यूचर और ऑप्शन। आप ये देखो ना, यहाँ पर 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 4 रुपए का लॉस हो गया। No, no, sir, not buyer and seller. I am asking about option and future. मैं भी तो ऑप्शन फ्यूचर कह रहा हूँ, दिस इज फ्यूचर ओनली ना, ये फ्यूचर ही तो है एक तरह से। हाँ, that's all. फ्यूचर और ऑप्शन में देखो कितना डिफरेंस है। आप ऑप्शन जब ट्रेड करोगे यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन योर रिस्क, आपको कम रिस्क लेना है ज्यादा रिस्क लेना है, ठीक है ना। या फिर आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है, साइडवेज मार्केट में फ्यूचर में कैसे कमाओगे पैसे, बट साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन से कमा लोगे। Exactly. Okay, so big difference, huge difference between future and option. And future is very expensive to trade. फ्यूचर में जो ब्रोकरेज के अलावा जो कॉस्ट आती है, जो गवर्नमेंट कॉस्ट है, दैट इज वेरी वेरी हाई। तो अगर आप मुझसे पूछो, मैं तो शायद आज तक ट्रेड नहीं लिया होगा फ्यूचर में, नेवर। मैंने भी so that's what I'm asking. हाँ, So I don't know the difference. Yeah. Okay, sir, that's it from my side. Thank you. मिस्टर निफिन प्लीज, मिस्टर निफिन प्लीज। Hello, hi. Yeah, thank you, sir, for explaining. I have basically two questions. One is like how the premium of one instrument is decided. Again, Uh, how and the okay, second question. not the premium, the amount. Like if you want to buy one call option, there will be certain amount that I have to pay. But if I like hedge it with some other instrument, then that premium amount will reduce. So how it is decided, like how much amount is needed for to buy one lot? Next question. Sorry. Only this question is there. Yeah. So another one is that so if I buy the futures of this month or next month, how the reward is calculated between 2 months? You are buying current future and next month future also you are buying. Yeah. So which will be having the more reward if the market moves, let's say 100%. Hardly any difference. Futures will move almost 100 delta, right? So hardly any difference. It will depend whether you're going for a long trade or selling trade. If you're going for a selling trade, if you're going for a downward direction, then current month will give you a slightly more profits than the next month, slightly more, but not always. And the answer to your first question was, it depends on VAR, value at risk. So again, you can go through NSE's calculation of VAR. There's a proper calculation how they calculate VAR, based on which they calculate the margin. And this is calculated every day, but how they do it is using VAR, VAR. Okay, but how, when you are hedging some instrument, it will reduce, right? So that is also based on VAR and how much is your maximum loss after hedging. Okay. Thank you. Sorry, iPad, Mr. iPad, आप अपना एक बार नाम चेंज कर लीजिए, जिनका भी ना iPad वगैरह लिखा है, please change the name if possible, so that I can call you by the right name. Sir, my name is Akhil. Sir. मेरे 2-3 सवाल है सर. नंबर 1, जो क्या आप पाइथन के लिए अलग से फुल कोर्स के लिए कुछ क्लासेस लेते हैं? नंबर 1 सर, ये है ना, इसमें पाइथन सिखाएंगे सर 15th डे से। नहीं, मैंने ये तो 4-5 दिन की क्लास हुई। नहीं सर, और नहीं सर, नो सर, यही बस ओनली दिस। अच्छा, और दूसरा, अपन जो एल्गो ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी सीखेंगे, उसके विनिंग स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? सर, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड, आप कम रिस्क लेना चाहोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा रिस्क लेना चाहोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, सिंपल। सो यू कैन गो फॉर अ 70% प्रोबेबिलिटी विद क्या कहते हैं, लो रिस्क, एंड यू कैन गो फॉर बेसिकली, देखिए हर चीज ना, इट विल डिपेंड ऑन योर टोटल प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीनों का एक तरह का ट्रायंगल होता है। तो आप जिसको भी ज्यादा बढ़ाना चाहोगे, बाकी चीज कम हो जाएंगी, वेरी सिंपल।
ओके, और तीसरी चीज सर, ये जो एक्सेल शीट आप बनाया क्या ये शेयर कर देंगे? हाँ सर, ऑब्वियसली ये सारी एक्सेल जितनी मैं बनाया करूंगा, मैं क्लास के एंड के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया करूंगा। जी जी, थैंक यू सर। मिस्टर गुप्ता प्लीज, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता प्लीज। Hello. जी सर। Sir, thank you very much for this wonderful session and the course. Thank you. Sir, just I remember you told that you won't teach back testing, okay, in general, but like maybe later on, if you give us some guidance, like say that, like there are websites like Algo Test or StockMock, but they are like, especially StockMock, they charge a lot of money. And then like there is some, like I was kind of talking to one service called True Data, but for this half copy, like 1 minute expiry, historical expiry, but they're also asking for a lot of money. So if you can just give us some general direction about that, that will be very helpful. So you actually combine two questions. True Data gives you historical data, okay, in CSV format, in Excel format. Yeah. That is expensive. That is obviously expensive. If you talk about options data only, okay, if you just talk about options data, just Nifty, Bank Nifty options, I think the cost is around, I'm not sure, I think the cost is around 30,000 rupees per year of data. Yeah, actually, I think for 3 to 4 years of Bank Nifty and Nifty, they are asking 70,000 plus GST, something like that. Correct. So if you add more years, so yeah, I think 1 year is 30,000. If you add 3-4 years, about 70,000-80,000, right? Plus GST, so it will come about 1 lakh rupees. So again, you can go for True Data, obviously, but we have, since I do complete trading, right? So I have a lot of data, 1 minute data since 2017. So if someone wants it, again, you can drop me a message separately and we can talk about it. Yeah, that will be really helpful. And the second question was backtesting. StockMock backtesting is only available for very simple option strategies, right? Yeah, time-based, basically. Very time-based. So I am actually creating a website, which is probably going to be launched in the next 2 days, where you can do backtesting of any option strategy with indicators also. Yeah, that will be really helpful. And sir, please kind of create a subscription model. Don't charge so high for this. We will offer it free, at least for the first 1 month, to all the community members. Yeah, thank you. That will be really great, sir. And one just last question quickly, sir. Like in the last part of the sessions, like in the later part of the course, I hope you will touch upon something related to trading psychology, like kind of no, sir. No, sir. My trading psychology pe, I don't think I'm the right person. Okay. No. I will teach you money management. Yeah, correct. I That's think the thing. Money management automatically helps you in trading psychology. Yeah, exactly. That's what I was like. I framed the question in a different way, but I was asking about that. Like it's correct. Money management is very important. The algo, then position management, money management, correct. all that stuff. Correct. Money management is the most important session. No one should miss that session because of whatever psychology you're saying, that is inbuilt in money management. Yeah, correct. Because as algo traders or systematic traders, we need to remove the emotion and make it very systematic and predictable. That's what. Exactly. Thank you very much, sir. Thank you, Ji. Mr. Dutt, please. Mr. Dutt. Mr. Dutt, please. Yes, sir. I'm want to ask what hardware will we use for algo trick for this? Normal laptop. But I use a desktop. I mean normal laptop or desktop. Oh, so desktop is okay. Yeah. No, we'll not trade on this mobile or anything like that. No, mobile. No, not a mobile. I got laptop or desktop. Yes, sir. Okay, thank you. Mr. Devendra, please. Yes, sir. The session was good actually. I have 2 questions. Zerodha charges 2,000 rupees per month. So the performance is good for Zerodha. That's why they are charging, and all others are not charging. I'm asking this question as I think you trade on all 3 of the brokers. So performance. It's not about the performance, sir. It's about the symbols. Okay. कितने आप symbol को data ले सकते हो? So with Zerodha, I think the limit is 3,000. Okay. But Fires only gives you, for example, 50 symbols. मुझे शून्य का याद नहीं कितना देता है वो.
So I Okay. think the issue is because of this. It's not because of the performance. Performance is almost similar. Okay. Second thing, actually, all brokers provide the paper trading using API or not? Yes. Broker provide नहीं करता है. We will have the paper trading in our code. Broker कोई provide नहीं करता. इंडिया में कोई broker provide नहीं करता. Only ये क्या नाम है उसका? What is the name? IA, right? What is it called? जो I am not getting the name. केवल वही provide करते हैं. इंडिया में बाकी provide नहीं करते. Sensible broker नहीं है ना. Sensible is not a broker. But we will be creating our own paper trading at our end. Yes, means we have to manage our Excels and we have to calculate our profit loss. हाँ, वो अपने end पे करेंगे. Exactly. Okay. And third thing is there any issue using, like I have to buy a particular trade in multiple accounts? Then for this, we will teach you that. Okay, but all these three brokers allows us, or that will be managed through Python? Python. Okay. Yeah. Okay. Thanks. Mr. Kumar, please, Mr. Kumar. Okay, few people are saying, is the session over? Haan, session is over. I'm not teaching any new things. I'm just taking questions. Yes. Mr. Kumar, please. Okay, Mr. Pankaj Kumar. Okay, Mr. Yati Raj, please. Mr. Yati Raj, please. Hello. जी. Hello. सर क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम किसी भी प्रीमियम पे हम किसी स्ट्राइक पे सेल करते हैं, एग्जांपल के लिए हमने किसी को सेल किया 100 रुपीज पे, ठीक है, उसका प्रीमियम उस टाइम पे 100 रुपीज लग रहा था और टोटल कॉस्ट माइट बी 1 लाख रुपीज. ओके. हेलो. हाँ, ठीक है. सपोज करो कि बस हमारा क्या होता है कि वो सेल हमने सोचा था कि उसकी रेट डाउन होगी, मार्केट डाउन होगा, यानी मैं सपोज करो कि पुट को मैंने सॉरी कॉल को मैंने सेल किया था, ठीक है. अभी उसकी रेट इंस्टेड ऑफ वो उल्टा चल गया, तो हमारा उसका प्रीमियम जैसे मेरा 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो मुझे मेरी जो एक्चुअल लॉस होगा वो कितना होगा यदि मैं एग्जिट मारूंगा? तो अगर आपने 100 का सेल किया था और आपने 110 के बाय कर लिए, जब ऊपर चला गया आपने 110 का बाय किया, तो आपका 10 पॉइंट्स का लॉस हो गया, राइट? 10 पॉइंट्स. बट अभी डिपेंड करेगा कि कितने लॉट थे उस, मतलब लॉट साइज कितना. अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी का लॉट साइज 50 का होता है. वो मैं समझ गया सर. मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा जो जैसे मेरा 10 पॉइंट होगा तो वो 10 पॉइंट इंटू 50 करूंगा, 500 रुपीज का लॉस होगा नॉर्मल. सो उसी जैसे हमें बाय में जैसे प्रॉफिट होता है उससे लॉस में भी उसी तरीके से कैलकुलेट होता है सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उसके प्रीमियम क्योंकि उसका जो टोटल अमाउंट ज्यादा लगता है तो नहीं, उससे कोई कैलकुलेशन में नहीं आता. नहीं सर, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. जो आपका मार्जिन है ना, वो हमारी कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं कैलकुलेशन में नहीं आएगा. गॉट इट. समझ गया सर मैं. और ये आपने बताया शून्य का चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस 0 है, तो कैसे, मतलब उनका बेनिफिट कहाँ से लेते हैं हम? सर वो मुझे नहीं पता. उन लोगों ने शायद कोई वीडियो डाली है, मेरे को लास्ट टाइम बैच ने बताया था कि उन्होंने कुछ YouTube पे वीडियो डाली हुई कैसे वो पैसे कमाते हैं, बट मुझे नहीं पता सर. अच्छा. हाँ जी, थैंक यू मिस्टर कुमार. मेरा क्वेश्चन रह गया अभी. जी बताइए. हेलो जी बताइए सर. सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हम एपीआई की बात कर रहे हैं, आईसीआईसीआई और कोटक आर आल्सो गिविंग फ्री एपीआई. So when we are going to learn Python, I think we can use ICICI and Kotak also. सर यूज तो कुछ भी कर सकते हो, बट मैं इस बैच में मैं केवल 3 सिखाऊंगा, ज़ीरोधा, फायर्स एंड शून्य. 85% कोड सेम रहता है, 15% कोड इज डिफरेंट फॉर ईच ब्रोकर टू ब्रोकर. ओके, बट हम यूज कर सकते हैं वो कोई भी? हाँ, यूज तो कर सकते हैं, बट ये Algo I know since last 10 years, but I am not using Algo only because all these brokers are not reliable. तो आप कर सकते हैं. आपको उसका क्या कहते हैं, एपीआई वगैरह खुद उसका कोड, उतना जो 15% का कोड है वो आपको खुद करना पड़ेगा. ओके. ओके, मिस्टर शशांक जी प्लीज. मिस्टर शशांक जी. Hi, Aseem. So actually my question is related to futures, but before that I wanted to tell you that with your first class only I was able to actually get a glimpse of algo coding, and I actually created an algo. In Python itself on Zerodha I created the account, and today I tested it live also. Great. Back testing of that pivot strategy, that is what I implemented, and the back testing I did it on Pine script.
So that gave me some confidence. So coming back to the question, when I was actually testing it, so apart from the brokerage, I wanted to know that when you said trading in futures is expensive, right? So I wanted to understand that how it is expensive. And this is the first question. And the second question is that the pivot strategy, right? So when we are trading in futures, we need to look at the asset chart or the asset chart. Anyone, either asset or futures, but keep it constant forever. But when I tested on futures, the strategy was little behind. I mean, in terms of returns. Any trend following strategy will give you more returns on index. Any trend following strategy. Okay. So sometimes it is in premium and discount. Will that affect it? That will not affect. Anyway, I will not trade in futures, right? We will learn how to trade that in options anyway. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट डिफरेंस व्हाई आई डोंट लाइक फ्यूचर्स. लेट्स से मेरे को 43,320 की बैंक निफ्टी चल रहा है, राइट? एंड आई वांट टू बाय वन लॉट ऑफ 43,320. मैंने उसी पे उसको सेल भी कर दिया. सो आई बॉट एंड सोल्ड at the same price and my quantity is one lot, 25 quantity, right? Can you see how much loss I've done? 255 rupees. ये तो लॉस मेरा guaranteed loss है. Imagine मैंने उसी प्राइस पे बाय करके सेल कर दिया, ये 255 रुपीज मेरा guaranteed loss हो गया, right? Correct. Okay. Now let's talk about an option. अगर मैं 43,300 की कॉल की बात करता हूँ, at the money call, okay, which is about 157 rupees. ठीक है? And डेल्टा हम आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज डेल्टा? बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज मैं डबल द क्वांटिटी बाय कर रहा हूं सो दैट आई कैन ट्राई टू मिमिक दिस फ्यूचर. इट विल नॉट बी 100% बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट. मतलब मैं क्वांटिटी डबल कर रहा हूं ऑप्शन की. सी द मैक्सिमम लॉस 61 रुपीज. आप देख रहे हो डिफरेंस? करेक्ट. सो यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड करूंगा? व्हाई विल आई पे 200 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर एवरी ट्रेड? So I don't like. Obviously due to turnover. ये है ना, this is the killer. This is the killer. So I don't like. I would not suggest you to trade future at all. It's very expensive. Okay, I was about to deploy that, but okay. हम लोग सीखेंगे ना. मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा फ्यूचर्स की, but I will show you why I do it in options. तो हम वहाँ पे वो सीखेंगे. Okay. Okay, thank you. Mr. Ashish, please. Mr. Ashish, please. हाँ सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, बताइए. हेलो. जी बताइए सर. हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि ऐप को हम AWS या लोकल क्लाउड पे जी कर सकते हैं. मैं उसकी आपको वीडियो दूंगा, आप कर सकते हैं. AWS पे डाल सकते हैं और लोकल हमारे सिस्टम में भी ऑन करके चला सकते हैं ना? यस जी. और एल्गो का रनिंग चार्जेस कुछ लाइफ टाइम के लिए और कुछ मतलब नो चार्जेस. नो, आप केवल ये जो चार्ज मैंने नीचे बताया केवल वो चार्जेस जीरोधा वाला. जी. और कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है? नो सर, नो. ओके. थैंक यू. मिस्टर प्रीतम प्लीज. मिस्टर प्रीतम प्लीज. सॉरी सर, मैंने आपको फिर से वो कर दिया. मिस्टर प्रीतम प्लीज. मिस्टर प्रीतम प्लीज. मे बी इज नॉट देयर. अच्छा हाँ बताइए. जी बताइए. हाँ सर, मुझे दो चार डाउट थे. जैसे कि फायर्स और जीरोधा, इनके जीरोधा का सपोर्ट मुझे पता है, तो फायर्स का सपोर्ट जीरोधा के जैसा है या कुछ अलग है? मतलब सर मैंने एक्चुअली कभी फायर्स का सपोर्ट लिया नहीं है तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक फायर्स अब इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ब्रोकर है, तो अच्छा ही होगा यार. ओके, क्योंकि अभी जीरोधा का जैसा भी सॉफ्टवेयर जो है मतलब फ्रेंडली यूजर है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आता वैसा. वो भी वैसे ही है सर, वो भी वैसे ही है. हाँ सिमिलर है सर, उनका ट्रेडिंग भी जैसा है काफी. ओके. और अगर मैं तो सिर्फ बायर हूँ, ये अल्गो में प्रॉफिटेबल हो सकता है ओनली बायर? मुश्किल है सर ओनली बायर से प्रॉफिट होना. हम बात करेंगे कि हमें ये है ना पॉइंट व्हेन वी शुड डू बाइंग, हम उसमें सीखेंगे कि बाइंग कब करनी चाहिए. ओके. और ये अल्गो से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं? हाँ सर, वो सिखाया जाएगा. सिखाया जाएगा. सर अभी जो ड्राइव आप हमको शेयर करने वाले,
वो लाइफ टाइम एक्सेसिंग है या कुछ हाँ सर, सब कुछ कैसे लाइफ रहना टाइम है सर, सारे डॉक्यूमेंट आपके हैं, आप डाउनलोड करके रख लो ना, कोई टेंशन नहीं है। इसकी भी जब वीडियो मिलेंगी ना ओके आपको, आप डाउनलोड कर लेना, हाँ तब इजी रहेगा। ओके ठीक है थैंक यू सर सिन्हा प्लीज, मिस्टर सिन्हा। Sir, I wanted to ask, will we be learning only options and futures या stocks also? नहीं, ओनली ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस ही करवाऊंगा सर। स्टॉक्स का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, 13th या 14th के आसपास आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। वो कोई और मेंटर है, आई डोंट डू स्टॉक्स। अच्छा, okay. And that is also possible to implement via Algo? हाँ, yeah. Okay, all right. Thank you, Mr. PB. Mr. PB. Mr. PB. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. So I wanted to ask if we can use multiple indicators with the Algo. Yes. We can use multiple indicators and not define the prices and then make a trade. Only indicators. Yes, we'll learn that. Only through indicators. And also, can we mimic the main Nifty thing, the indicators, and trade in some other option? This thing. Yes. Yes. So the basic indicators will be, because see the premiums will go up and down, so the indicators will be moving fast in options. So the I understand. actual You want to do analysis on, let's say, Nifty, and you want to take trade in options. options, yeah, any We'll learn any that. ATM calls, We'll learn that. we can do that. Yeah. And also this one more thing, sir. I was just wondering, it is all dependent on the cash market, right? If the price movements, the underlying prices is all on the cash market. Yes, Based generally on the yes. cash Spot, yes. Okay, sir. That's it. Thank you. Mr. Gambhir, please. Mr. Gambhir. हाँ सर, सर आपने कहा लैपटॉप से हम रन कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप को हमेशा ऑन रहना पड़ेगा दिन भर, आप छोड़ भी नहीं सकते ना? करेक्ट, अगर आप लैपटॉप से करेंगे तो आपको दिन में ऑन रखना पड़ेगा, वरना फिर आपको Amazon पे डालना पड़ेगा। ओके, और दूसरी बात सर, आपने कहा कि हम खुद अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, लेकिन आप भी कुछ ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रेटजीज हमको देंगे ना? यस। ओके, ठीक है, ये सवाल। थैंक यू। ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी। हेलो जी, नमस्कार सर। बताइए सर। सर दो चीज पूछना था मेरे को। एक तो आपने बताया था जीरोधा करीबन 300 सिंबल देता है और बाकी फायर 50 सिंबल देता है। सिंबल क्या होता है ये समझ नहीं आया मेरे को। सिंबल मतलब स्टॉक का नाम, जैसे कोई भी एक स्टॉक का नाम या इंस्ट्रूमेंट बोल लो, जैसे एक ऑप्शन 18,000 की कॉल ऑप्शन, वो एक सिंबल माना गया। 18,100 की कॉल ऑप्शन, वो दूसरा सिंबल माना गया। निफ्टी तीसरा सिंबल माना गया। इसको सिंबल बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो वो मतलब 3-4 इन द मनी और 3-4 आउट द मनी तो देगा स्वभाव का। हाँ, अगर 3-4 इन द मनी 3-4 आउट ऑफ द मनी, 10 ही सिंबल तो है, तो मिल जाएंगे। वही। दूसरा सर क्वेश्चन ये था, आपकी मर्जी, आप कौन से 50 लेना चाहते हो। अच्छा। दूसरा ये था क्वेश्चन, आप ये कह रहे थे कोई भी स्ट्रेटेजी अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो वो बहुत अच्छा काम करती है। स्पॉट अच्छा काम करता है फ्यूचर से, यस। ठीक है सर। दूसरी तरफ अगर हम ये सोचें कि अगर मान लीजिए कोई लास्ट डे ऑफ द मतलब एक्सपायरी है, मान लीजिए थर्सडे है और 200 का बैंक निफ्टी का 200 का स्ट्राइक वो आ रहा है प्रीमियम वैल्यू, तो सर 200 का तो 600 हो जाता है अगर हम कॉल बाय करके चले, और अगर हम बेच के चले सपोज पुट को, तो 200 भी नहीं मिलेंगे हमें। मतलब तो सर यहाँ पे मतलब थोड़ा विरोधाभास नहीं हो गया दोनों बातों में कि कोई ट्रेंडिंग मार्केट मान लो थर्सडे को हमें लास्ट में ट्रेंडिंग कह लो, पूरे दिन का ही ट्रेंडिंग कह लो, तो 200 का कॉल जो है मतलब 600 भी हो सकता है। हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। और अगर हम बेचने पे आए पुट को तो 200 ही मिलेंगे, 180 मिलेंगे। करेक्ट, सही कह रहे हैं। मतलब जो आपका जो स्टेटमेंट है, या मतलब स्टेटमेंट इन सेंस जो आप कहते हो कि मैं स्पॉट वर्सेस फ्यूचर का बैक टेस्ट का रिजल्ट बता रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि स्पॉट का बैक टेस्ट किया उन्होंने, वर्सेस फ्यूचर का बैक टेस्ट किया। मैंने उसमें कहा था कि कोई भी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी में स्पॉट का रिजल्ट फ्यूचर से बेटर होगा। सर मैं उस बात पर नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या कहा, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक जनरल बात भी यही है कि सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट आता है ऑप्शंस की। तो मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि सपोज ट्रेंडिंग मार्केट रहा पूरे दिन, या बुध को और बृहस्पति को दोनों दिन,
वो हम कल डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट जो है ना बिग प्रॉफिट, आप बिग प्रॉफिट का बात कह रहे हैं, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। अच्छा। ओके, थैंक यू। मिस्टर अग्रवाल प्लीज, मिस्टर अग्रवाल। हेलो जी सर बताइए। हाँ सर, जैसे आपने बताया था कि इसको लैपटॉप पे करना है और अगर फुल टाइम उसको ऑन नहीं रखना है तो उसको अमेजोन पे लोड करना है क्लाउड पर। बट ये अगर समझ लैपटॉप का मेरा कुछ एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा टाइम पर, तो उसको मोबाइल से एटलीस्ट ऑन कर सकते हैं या वो भी पॉसिबल नहीं मोबाइल से? मोबाइल से आप इसको नहीं चेक कर सकते सर, मोबाइल से आप अपने ब्रोकर को लॉग इन कर सकते हो। ओके। बट कोड तो आपके लैपटॉप पे चल रहा है ना, वो मतलब ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये आपके कोड तो आपको इस पे ही चल रहा है। अच्छा, मतलब जो पर्टिकुलर डिवाइस हमने किया है उसी डिवाइस पे होगा, नॉट द अगर मैंने हाँ, इट्स नॉट अ एक लैपटॉप। वेबसाइट। हाँ, इट्स नॉट अ वेबसाइट कि आप उसको कहीं से भी लॉग इन करके देख लो। अच्छा, मतलब ऑफिस का लैपटॉप पे मैं करूँ और घर के लैपटॉप पे, नहीं, मतलब वो हाँ, पर्टिकुलर उसी डिवाइस से होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके 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 ओके, फाइन, थैंक यू। मिस्टर संजय जी प्लीज, मिस्टर संजय जी प्लीज। हेलो हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं दूसरों को ले रहा हूँ। मिस्टर मले प्लीज, मिस्टर मले। गुड इवनिंग सर। जी सर बताइए। आपने बताया था कि हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं पाइथन में कोडिंग करने के बाद, बट बैक टेस्टिंग उसमें हो सकता है ब्रोकर नो के डेटा के से? नो। ओके, और ये पेपर ट्रेड जो होगा वो पेपर ट्रेड के अंदर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी डायरेक्टली वो कर सकते हैं ना? यस यस। और अगर ये आपने अभी जो बताया आगे वाले बंदे को कि अगर हम लैपटॉप में होगा हमारा पाइथन का जो भी कोड होगा वो, तो कोई ऐसी अगर कोई साइट हो या ऐसा कुछ फ्रेमवर्क हो Amazon। जिसमें हमारा पाइथन का वो कोड डाल के हम ऑनलाइन रख सके, कोई Amazon। ड्राइव हो ऐसा कुछ, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी, Amazon। अमेजोन AWS होता है, Amazon वेब सर्विसेज, वहां पे आप डाल सकते हैं। मैं आपको उसकी एक वीडियो दूंगा, आपको वो फॉलो करना होगा, आपका वो कोड आप पे Amazon वेब सर्वर पे चले जाएगा। ओके, उसका चार्जेस कुछ होता है? मेरे हिसाब से $7 या $8 होगा, $7 या $8 मंथ। मंथ। यस। ओके, थैंक यू। मिस्टर अमन प्लीज, मिस्टर अमन। गुड इवनिंग सर। सर बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सपोज जैसे कि हम एल्गो के थ्रू कुछ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स क्रिएट करेंगे जो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा एज पर दी मार्केट कंडीशंस। अब सर मुझे ये एक्चुअली एक पूछना था। सपोज कीजिए जैसे कि हमारा वीकली एक्सपायरी हो जाता है थर्सडे को, एंड फ्राइडे को नया पोजीशन बनना शुरू होता है फॉर दी कमिंग वीक के लिए। सर अब फ्राइडे को सर पोजीशन बनना शुरू होता है, तो उस टाइम जो मार्केट का कंडीशन होता है वो एक डिफरेंट उसमें होता है। फिर सडनली जब मंडे आता है तो मार्केट क्या करता है, मैक्सिमम मैंने देखा सर मंडे को और ट्यूसडे को मार्केट मैक्सिमम थोड़ा साइडवेज रहता है, यानी बड़े बिग मूव नहीं आते। एंड और वेडनेसडे आते आते तो वेडनेसडे को तो इतना ज्यादा प्रीमियम डीके स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एक्सपायरी आता है और प्रीमियम डीके आना स्टार्ट हो जाता है। और सर इसमें एक चीज और कि सपोज मॉर्निंग के सेशन में मैंने देखा है स्टार्टिंग के 1 घंटे तो काफी अच्छा मूव आता है, बट आफ्टर दैट मार्केट बिल्कुल एक डल हो जाता है, यानी कोई मूवमेंट नहीं होता। वो मार्केट लिटरली 1 बजे या 1:30 के आसपास एक मूवमेंट देता है। तो सर हम इस चीज को एल्गो के थ्रू कैसे हैंडल करेंगे कि आफ्टर 1 o'clock सडनली एक प्रीमियम डीके फास्ट हो जाता है, आफ्टर 1:30 बाद प्रीमियम डीके हो जाता है। जैसे आज ही प्रीमियम जो थे बैंक निफ्टी में काफी फ्लक्चुएट कर रहे थे, सडनली 20 पॉइंट 30 पॉइंट्स ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, बिकॉज अब कल क्या है, कल एक्सपायरी है और आज फैट के मिनट्स भी आ रहे हैं। सो दैट वो इतना फ्लक्चुएशन सर हम कैसे यानी कि हैंडल करेंगे थ्रू अपने एल्गो की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सर। आपको अगर पता है कि 1 बजे के बाद आने वाला है, तो आप 1 बजे के बाद ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी लगा दो। बट सर वो उसमें सर प्रीमियम तो काफी फास्ट मूव कर जाता है, जैसे कि सडनली कभी आप एल्गो का चढ़ मतलब जाता है। ये नहीं है कि वो प्रीमियम जो एक्चुअल चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो फास्ट मूव करे तो एल्गो के लिए भी फास्ट ही रहेगा वो। अच्छा तो सर ये हमारा ये सारा जो है पार्ट में रहेगा ना कि हमें थोड़ा बताया जाएगा ना कि इस कंडीशन में हमें कैसे हैंडल करना है चीज को।
हाँ सर, हाँ सॉरी सर। हाँ जी हाँ। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर कुमार प्लीज। Hello. जी सर। Hi. Yeah. Hi, Aseem. So my first question is regarding, the strategies which you have provided in Google Drive. The naming has been done as strategy 0, 1, 2, 3, and 4. Yeah. Is there any kind of a reference where I can see what strategy? We will talk about that, sir. Acha, but as of now, there is no reference document, is it? Like what is Not as of now. No, not. Okay. Okay, then the other thing is around open interest. Generally, this is one question I had already in my mind. So see, if you can sell, there can be sellers only if there are buyers, right? But generally, when you look at open interest, we come to a conclusion that those are mostly sellers, right? Because of there is a lot of selling activity happening at a particular strike price, so that is why there is a lot of open interest. Why do we do that? Why do we come to that conclusion that there are mostly sellers which are kind of driving this open interest? Any specific reason? Again, I don't care, sir. That doesn't help me to make money. Okay. So it doesn't make any sense in algo trading, right? You mean to say like this open interest? I have never found any good strategy with OI. Okay. Then in the master class, Aseem, you were talking about this crossovers, right? Like a 5 EMA crossing over 8 EMA, or That's right? you can do that when we run the indicator strategies. Okay, so can we get those values from APIs directly? Like what is the value of? Of course, yeah. Okay. We need not to do any calculation based on the No, we will not do candles. any calculation. No. Okay, great. Okay, yeah, that's all from my side. Thank you. Sanjay ji, आपका कोई question है तो you are still unmuted. If you have any question. Okay, let's just quickly take 5 more questions. It's already late. Sorry guys. Mr. Navneet ji, please. Yes. So, let's just Hello. Please take one question only per person. It's already late. हाँ जी बताइए. आज का लिंक आप देंगे इस पे ग्रुप पे? हेलो. Yes sir. ओके. एंड ये जो अल्गो जो है वो चार्ट लोडिंग करना पड़ेगा उतना स्क्रिप्ट No का? sir. नहीं सर. कोई चार्ट यहाँ पे कुछ भी फ्रंट एंड नहीं होगा. There is no charting. कोई चार्ट यूज ही नहीं होगा. ओके. नहीं मतलब चार्ट ओपन करके रखना पड़ता है फिर उसका इंडिकेटर ये मिलता है सिग्नल, ऐसा कुछ नहीं है ना? नो. ओके. और बैक टेस्टिंग आपके थ्रू से कुछ हो पाएगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. We'll send you the back test. ओके. थैंक यू वेरी मच. Mr. Dinesh, please. Mr. Dinesh. Hi, Aseem. हाँ जी बताइए सर. Sir, see, so everybody is asking about call, put, that. So all these guys are doing something or other in this option trade there, right? Why this is music to my ear is that why I joined this session is that I don't have any idea about the option. Okay. And in the first class itself, we are talking about chart, graph, strike price. So there are a lot of questions going on in my mind, basic questions here. Who decides the strike price? What is the entry price? What is the exit? What we're talking about? So the basics is not clear yet. And my whole purpose of joining this session is that knowing about how this option works actually. मैंने बताया ना, आपने कहा कि who decide the strike price? You decide the strike price. मैंने यार बताया ना. See this. Obviously इतने सारे option trade कर रहे हैं. So someone is buying, someone is selling. Now, if you want to take more risk, you go for OTM, जो सस्ता option है. If you want to take less risk, you go for in the money. Now, who decided this 18,200? That's the question. You decide ना, आप trade कर रहे हो. अच्छा, मैं उसको बोलूंगा मुझे 18,200 में दे करके. 200 दे दे नहीं, 18,200 को आप बाय करोगे. जैसे आप रिलायंस को बाय करते हो, तो आपने डिसाइड किया ना कि मुझे रिलायंस को बाय करना है. ऐसी 18,200 एक स्टॉक मान लो, तो ये 18,200 का ये रखा हुआ है ऑप्शन. आपके पास 3 ऑप्शन जैसे पड़े हैं यहाँ पे. आप देखो, कॉल ही 3 है, राइट? अब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप डिसाइड करोगे कि ठीक है मुझे आज ये वाला बाय करना है, मुझे ये वाला. ये समझ गया. बट जैसे हम कैश में स्टॉक मार्केट में वो करते हैं, इक्विटी में तो कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है, राइट? वो अपना कोड करता है, कोई बाय करता है. बट यहाँ पर बाय करोगे तो आप बाय करोगे तो आप बायर होगे, आप सेल करोगे तो आप सेलर होगे. नहीं, बट हु इज डिसाइडिंग दिस 18,000, 18,200 and 18,400? आप जब
आप जब रिलायंस और टीसीएस में बाय करते हो तो आप डिसाइड करते हो ना कि आज आपको रिलायंस बाय करना है कि टीसीएस बाय करना है. But someone is quoting their price, right? Some seller is saying कि I want to sell it at 18,000 and I am saying that okay, I want to buy that at 18,000, right? ठीक है, तो यहाँ पे भी तो कोट हो रहा है ना 106.65. Some seller is saying कि 165 पे मैं सेल करूंगा, some buyer is saying ठीक है I will buy it at 106.65. ये दिया तो है या प्राइस. हाँ, तो ये समझ में नहीं आया सर हमको. ये 106.65 18,000 पे क्या बोल रहा है वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है. ये क्वेश्चन बताओ ना आपका. मैंने आपने कहा कि रिलायंस का प्राइस क्या होता है. रिलायंस का प्राइस 2400 चल रहा है, राइट? तो 2400 कोई बायर भी दे रहा है, 2400 कोई सेलर भी दे रहा है. सिमिलरली इस चीज को आप रिलायंस मान के चलो. 18,000 से कंफ्यूज मत करो. ये तो केवल नाम है. ये 18,000 के बजाय 2500 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. प्राइस तो इसका 106.65 चल रहा है. तो कोई बायर 106.65 पे बाय करना चाह रहा है, कोई 106.65 पे सेल करना चाह रहा है. सिंपल. तो कुछ भी डिफरेंस नहीं. स्टॉक मार्केट और इसमें एकदम कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ये नेमिंग है केवल. 18,000 से कंफ्यूज मत हो. ये प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है इसका. दिस इज ओनली द नेमिंग. बट ये 106.65 जैसे आप निफ्टी का बोल रहे हो, तो निफ्टी का प्राइस अगर मैं ये रिलायंस ले आता लेट से, तो ये इसका एक्चुअली जो रिलायंस का प्राइस चल रहा है कैश मार्केट में वही प्राइस आता है यहाँ पर. ऑप्शन अलग अलग होता है ना सर. मैंने ऑप्शन की प्राइसेस समझाया ना यहाँ पे. आप एक बार क्या कहते हैं, आज की एक बार वीडियो पूरा देखो. मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि प्राइसेस चेंज कैसे होते हैं. आपको तब भी कोई क्वेश्चन है तो आप अगले सेशन में मुझसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना कहाँ आपको एरर आ रहा है. ठीक है ना? ओके. हाँ, एक बार ट्राई करिए. आप एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा कि आपको क्या क्या चीज नहीं आई क्लियर. मुझे ऑप्शन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ. मैं वही तो कह रहा हूँ सर. आज मैंने बेसिक्स ही सिखाया है. एक बार आप वीडियो तो पढ़ो, एक बार देखो तो. ठीक. I'll go through. ओके. जिनके मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिए, लेट्स नॉट टेक द सेम क्वेश्चन अगेन. जिनके मैंने लिए मैं उनके ले लेता हूँ. मिस्टर हिमांशु जी प्लीज. मिस्टर हिमांशु जी. Okay, Mr. Himanshu is maybe not there. Okay, I'll just take last question of Mr. Paramjeet. Mr. Paramjeet, please. सर जस्ट आपने कहा कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपने कहा कि आप कल आंसर देंगे. सो इज देयर एनी क्लास टुमारो आल्सो? मतलब कल का जब भी मैं कल बोलूंगा ना, दैट मींस नेक्स्ट सेशन. मुझे याद नहीं है क्लासेस कब है. ठीक है. नेक्स्ट सेशन इज ऑन फ्राइडे. ठीक है सर. हेलो हिमांशु जी, इफ यू आर देयर. हेलो जी बताइए. आवाज नहीं आ रही, बस थोड़ा जोर से बोलिए. सर मैं ये पूछ रहा था, एनी डेस्क यूज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दूसरे लैपटॉप से एक लैपटॉप घर पे? तो हाँ, कर सकते हैं. एनी डेस्क के थ्रू हम Yes. अलगो रन कर सकते हैं ना? Yes. तो अमेज़न यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर? नहीं होगी, कर सकते हैं. ओके सर. Okay, Sanjay ji again. Oh, sorry, where are you, Sanjay? Okay, Mr. Sanjay. I still cannot hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही, सर. Not able to hear you. नहीं आ रही, सर. Okay, great. So I think I've taken everyone's question. सबका मैंने एक बार क्वेश्चन ले लिया है. I don't think किसी का कोई क्वेश्चन मिस हुआ था. ठीक है. So guys, मैं आपको मयंक अजूबा नहीं लिया है. Okay, Mr. Ahuja, please. Hello. जी. Yeah, so at the end we have to just execute this Python scripts, am I right? Like whatever the strategy we build, so it's just the execution of the Python scripts. So, and this would be independent of the OS, am I right? Like it can be Unix or it can be like Windows or anything. Unix पे नहीं करेंगे हम लोग. My team can help you with Mac and Windows. I mean that's fine. See, at the end it would be just py files we have to run. Yeah, obviously it's only Python. If I can do the porting myself, then it's all fine. But it's just the py. Yeah. And some cron job I can enable, and these can keep running and all that. That's all. Correct. Okay. Thanks. Yeah. Okay. ठीक है जी. Great. Okay. So again, thank you guys for joining in. I will be sending you this Excel file. मैं आपको भी ग्रुप पे डाल दूंगा. एंड मैं आपको वो भी बता दूंगा हाउ टू स्टार्ट विद योर इंस्टॉलेशन प्रोसेस. आप लोग ट्राई करिएगा. अगर नहीं होता है सो वील हैव द हैंड होल्डिंग सेशन. मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड
वो again we'll talk about that in detail in money management class. In money management class में हम वही डिटेल पे बात करेंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट मनी मैनेजमेंट क्लास में बात करेंगे. This is the fifth class, ठीक है Mr. Sinha? Okay, great. So again, thank you guys, good night, and I'll see you on Friday. Bye.